ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ मनरेगा ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ IAS IPS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, PCS ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ BA ਆਨਰਸ ਜਾਂ MA ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਕੈਡਮਿਕ ਪ੍ਰयास है कि मनरेगा की है और विकसित भारत राम जी की है, की फर्क है, किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ JRY ਆਇਆ। JRY ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਵਾਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ। ਜਵਾਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ, ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 80, 90, 100 दिन तक कोई रोजगार मिले। रोजगार का मतलब इत्थे मजदूरी है, लेबर है, ठीक है। तो ये जो स्कीम बनाई गई, तो ये स्कीम बनाई गई दो स्कीमां सीगियां, एक NREP ते दूसरा RLEGP। NREP ते RLEGP। NREP का मतलब है कि नेशनल रूरल इंप्लॉयमेंट प्रोग्राम। ਇਹ 1980 ਤੋਂ 65 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ NREP। ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਵਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਕੀਮ ਸੀ RLEGP, ਰੂਰਲ ਲੈਂਡਲੈਸ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਨਾਜ, ਇਹ ਸਕੀਮ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੂਡ ਫॉर ਗ੍ਰੇਨ ਸਕੀਮ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ JRY ਤੇ, ਜਵਾਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। NREP ਤੇ RLEGP ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी से, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि जवाहर रोजगार योजना 1989 में अस्तित्व में आया और NREP प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, मतलब ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी प्रोग्राम। इन्हां दोवें प्रोग्रामां नूं मिला के जवाहर रोजगार योजना बनाया गया। मतलब इन दो स्कीम्स को मिलाकर के जवाहर रोजगार योजना बनाया गया और ये बहुत ज्यादा हिट हुई है योजना। जब बनाई गई तो उस समय काफी लोग थे जिनको रोजगार की तलाश थी। रोजगार का मतलब मैं दोबारा बताऊं कि ये एक लेबर के रूप में काम करना था। चाहे कोई स्कूल बन रहा है, चाहे कोई, उस समय इंदिरा आवास योजना चलती थी, तो आवास योजना में इन लोगों को लेबर का काम दिया जाता था और मजदूरी इनको मिलती थी, ठीक है। अब 1999 में इस योजना का रूपांतरण किया गया JGSY में। उस समय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, तो
तो उन्होंने इस योजना का पुनर्गठन कर दिया। तो जो जवाहर रोजगार योजना थी उसका नामकरण किया गया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इस योजना को बदल करके जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किया गया 1999 में। और ये सिर्फ यही नहीं था कि नाम बदल दिया गया, इसके स्वरूप में भी बदलाव किया गया, इसके ढांचे में भी बदलाव किया गया ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो ये 10 साल बाद 1989 के बाद 1999 में जवाहर रोजगार योजना क्या बन गई? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इसके बाद फिर 2 साल के बाद प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ही थे, तो उन्होंने एक और योजना बनाई। तो एक योजना पहले से चल रही थी EAS, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। ये 1993 से चल रही थी। अगेन ये कांग्रेस की सरकार थी और श्री PV नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। उस समय ये योजना, ये भी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ही एक तरीके से थी ताकि लोगों को लाजमी तौर पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। तो एक ये योजना थी EAS और एक JGSY। इन दोनों योजनाओं को मिलाकर के SGRY बना दी गई। तो अब आप देखें, एक जवाहर रोजगार योजना, उसके बाद फिर JGSY, फिर आ गया SGRY, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये 2001 में आई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY योजना बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी और इसका काफी फायदा भी हुआ लोगों को। इसके बाद देखिए, फिर 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। तो उस समय तक ये सारी स्कीम्स जो थी ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चल रही थी, मतलब कोई कानून नहीं था। तो 2005 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया। कानून का नाम दिया गया नरेगा। 2005 में नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये जो स्कीम जो चल रही थी उसको एक एक्ट के रूप में बना दिया गया, एक लॉ बन गया ये। इससे पहले ये सरकारी ऑर्डर नोटिफिकेशन के माध्यम से चल रहा था। तो 2005 में ये एक्ट बना दिया गया, नरेगा बन गया, NREGA। इसका मतलब क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसमें मोर और लेस काम वही रहा, लेकिन क्या हुआ, इसका स्वरूप बदला और ये कानून का रूप ले लिया। अब जब दोबारा केंद्र में सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बनी, मतलब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तो इसी योजना का नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर किया गया। तो ये योजना शुरू हुई थी जवाहर रोजगार योजना से। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके नाम से ये योजना शुरू होते होते और फिर ये योजना महात्मा गांधी के नाम से आ गई। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो 2010 में 2 अक्टूबर से इसका नाम क्या कर दिया गया, इसके लिए कानून में संशोधन हुआ और MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कहने का मतलब कि नरेगा मनरेगा बन गया। 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, तो 2 अक्टूबर 2010 से नरेगा मनरेगा बन गया। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ था, ये जो कड़ी शुरू हुई थी जवाहर रोजगार योजना 1989 से, और उसके पहले भी 2 स्कीमें थी, NREP और RLEGP। तो यहां से ये जो सिलसिला शुरू हुआ, तो JRY से JGSY 1999 में, फिर SGRY 2001 में, फिर NREGA 2005 में, जिसको हम नरेगा बोलते थे, और 5 साल नरेगा जब हो गया तो उसके बाद इसको मनरेगा किया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये जर्नी रही जवाहर रोजगार योजना की मनरेगा तक, 1989 से शुरू होकर 2010 तक। अब जो स्कीम बनाई गई है, तो जो एक्ट आया है, जो कानून आया है,
उस कानून ने मनरेगा को रिप्लेस किया है। मनरेगा को रिप्लेस करके इसको जोड़ा गया है विकसित भारत से। विकसित भारत, जो कि लक्ष्य रखा गया है कि 2047 मतलब 2047 तक भारत को विकसित कर देना है, डेवलप्ड कंट्री के श्रेणी में ले आना है। जैसे कि हमारे अमेरिका है, कनाडा है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, जापान है, फ्रांस है। तो इन सारे जो कंट्रीज की श्रेणी में इसको लाने का एक लक्ष्य रखा हुआ है। हर सरकार अपना लक्ष्य रखती है, तो भारत सरकार ने यह लक्ष्य रखा हुआ है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। और इसके जो मापदंड हैं और जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको ध्यान में रखते हुए मनरेगा को पुनर्गठित किया गया है। यह सिर्फ नाम नहीं बदला गया है, इसका पुनर्गठन हुआ है। तो इस चीज को पुनर्गठित करके इस योजना ਨੂੰ विकसित भारत ਦੇ ਨਾਲ जोड़ के तो की बनाया गया है VB, विकसित भारत गारंटी फॉर RAM। RAM ਦਾ मतलब की होया रोजगार एंड आजीविका मिशन। तो हो गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण मतलब रूरल, ग्रामीण एरिया वास्ते। तो यह हो गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो ग्रामीण खेतर वास्ते, रूरल एरिया वास्ते इनू विकसित भारत दे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दे नाल जोड़न वास्ते इनू जी राम जी, जो कि असी शॉर्ट दे विच बोलते हैं जी राम जी, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जिहड़ी सरकार है, इन्होंने यह बिल लियांदा है। बिल पास भी हो गया और राष्ट्रपति जी का एसेंट भी मिल गया, मतलब उन्होंने राष्ट्रपति जी ने इस बिल को मंजूरी दे दी। यह हुण कानून दे विच आ गया है। हुण असी देखना है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां वालों ने उन्होंने वालों विरोध हो रहा है। मैं ये नवे एक्ट नूं मैं भी पूरे तरीके दे नाल नहीं पढ़ सकिया हाँ, मैं पढ़ रहा हाँ, लेकिन ये एक्ट वधिया सी, एक कानून वधिया सी कि मनरेगा, ये कानून वधिया सी। ये मैं जो पूरे तरीके दे नाल इहदी स्टडी कर लवांगा फिर मैं दसांगा कि ये जिहड़ा नवा कानून आया है ये ज्यादा वधिया है कि पुराना कानून मनरेगा। इहदे विच ये जरूर है कि मनरेगा दे विच 100 दिन तक दे रोजगार दा सीगा, लेकिन इहदे विच 125 दिन दे रोजगार दा किया गया है। और बहुत सारियां तुसीं देखोगे संरचनात्मक इहदे विच चेंजेज होए ने, परिवर्तन किए गए ने। लेकिन मैं इहदे बारे टिप्पणी बाद दे विच करांगा जदों मैं पूरे तरीके दे नाल इस कानून नूं, इहदी कापी मेरे कोल है और लोक सभा दी वैबसाइट तो मैं इहनूं डाउनलोड कर लिया, मैं पढ़ रहा हाँ। तो पढ़न तो बाद, समझन तो बाद फिर मैं ये चीज दसांगा कि ये स्कीम वधिया सीगी कि ये स्कीम वधिया सीगी। ये जरूर है कि राजीव गांधी साहब ने भी जदों ये योजना शुरू की सी उदों भी करप्शन काफ़ी होया सी। इस दे विच मास्टर रोल जो बंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ हेराफेरी ਹੁੰਦੀ ਸੀ, काम नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 5 आदमी काम ਕਰਦੇ ਸੀ, 10 आदमी ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ स्टैंप लगवा लिया ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ भी राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री साहब बहुत चिंतित सन कि इस योजना ਨੂੰ ਅਸੀਂ शुरू ਕੀਤਾ ਸੀ कि ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। लेकिन ਜਦੋਂ नरेगा भी आया, नरेगा ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ। मैं अमृतसर नॉर्थ ਦਾ MLA, 12 पंचायतां ने जी मेरे एरिए ਦੇ ਵਿੱਚ मैं बहुत कोशिश की कि कुछ काम नरेगा ਜਾਂ मनरेगा तो करा लिया जाए, लेकिन ਅਸੀਂ चूंकि उत्थे बैठे सी और कोई हेरा फेरी की गुंजाइश नहीं सी, तो मैं देखा कि कोई काम मनरेगा तो नहीं हो रहा है। तो कुछ खामियां भी सीगियां कि पहला काम कराओ, सरपंच साहब वालों पेमेंट किया जाऊगा मजदूरी का, बाद दे विच तुसीं बिल बना के अपलोड करो फिर पैसा आऊगा। ये भी एक खामी सीगी। नवे एक्ट दे विच, नवे कानून दे विच ये देखना है कि ये चीज है कि नहीं है, ये विच किस तरीके का प्रोविजन किया गया है। लेकिन यह है कि असीं क्लीयर कट ये बारे तां ही दसांगे
ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਨॉन ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਔਰ ਐਕੈਡਮਿਕ ਹੈ ਔਰ ਸਟੂडेंट्स ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜੇਕਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਟੂडेंट्स ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਆਈਐਸ ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੀਸੀਐਸ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ मतलब मैनू नॉलेज काफ़ी है, मैं आप दस रहा हाँ। उसका कारण की है, ठीक है, मैं 22-23 साल तक IPS की नौकरी की पंजाब कैडर दे विच। पुलिस डिपार्टमेंट ते मैनू काफ़ी पकड़ है कि क्राइम या इन्वेस्टिगेशन, लेकिन मैं इत्थे दस देना चाहुंदा हाँ कि IPS दे विच आउण तो पहला मैं यूपी दे बलिया जिले दे विच बतौर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कुछ चिर तक काम किया सी। उदों ये जवाहर रोजगार योजना चलती सी, तो मैनू उदों तो इंटरेस्ट भी है तो नॉलेज भी है रूरल डेवलपमेंट के बारे। तो मेरी पढ़ाई लिखाई भी है, हर कंपीटिटिव एग्जाम दे विच इसकी तैयारी करनी हुंदी है। तां ही मैं ये जरूरी समझा कि साडे जिहड़े स्टूडेंट्स ने जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हां नूं इसदा फायदा हो जाए। जो साडे भैन भरा ज़्यादा जानकारी लेना चाहुंदे हन जां स्टूडेंट्स, वो मेरे ईमेल आईडी ते प्रश्न कर सकते हैं kunwar98punjab@gmail.com, kunwar98 KUNWAR 98 punjab@gmail.com। जहाँ मेरा जो मोबाइल फोन है, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर ते मैसेज करके 98 140 85 205 दे उत्ते अगेन फोन ना करो, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋ व्हाट्सएप मैसेज करके, तो मैं हर प्रश्न का जवाब देवांगा। ते इस तो अलावा भी मेरी सोच है कि राजनीति दे विच साडे स्टूडेंट्स नू प्रमोट करना, उन्होंने गाइड करना बहुत जरूरी है। तो तुसी एक पढ़े लिखे बंदे नू MLA बनाया है, पॉलिटिशियन बनाया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि असी स्टूडेंट्स नू भी गाइड करिए। और स्टूडेंट्स नू गाइड करन दा मकसद यह है कि वो पढ़ लिख के आगे जाके एक वधिया जेकर सर्विस करते हैं तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ सोसाइटी, साडा स्टेट पंजाब, साडा मुल्क भारत एक विकसित बनेगा, डेवलप बनेगा और साडे बच्चों का वध तो वध योगदान होगा। एक चीज होर मैं इस संबंध में दसना चाहता हाँ कि देखो ये सारिया स्कीमां ने 1977 तो स्कीम चली सी, 89, 99, 2001, 2005, 2010। हुण तुसी देखो ये 2010 है, हुण आ गया 2025 दे विच एक नवा कानून आया है। तुसी जेकर मैनू पूछो कि देखो 1977 तो गरीब लोग साडी सोसाइटी का हिस्सा है, तो 77 तो जेकर असी शुरुआत की फिर भी गरीब क्यों रह गए जी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उदों कहा सी गरीबी हटाओ कार्यक्रम, और मैं जिथे तक समझदा हाँ पांचवी पंचवर्षीय योजना 5th 5 ईयर प्लान तो ही गरीबी नू दूर करने वास्ते बहुत सारे स्कीम भारत सरकार वालों ते स्टेट गवर्नमेंट्स वालों चलाए गए, लेकिन गरीबी दूर नहीं हुई, गरीबी बढ़ती जा रही है। क्यों? मैं समझदा हाँ कि गरीब आज दे माहौल दे विच आज दी राजनीति की जरूरत बन गए ने, इस करके गरीबी नहीं जा रही है। तो तुसी मैनू पॉलिटिशियन बनाया, मैनू तुसी पूछोगे कि तुहाडा की विजन है, तो मेरा क्लीयर कट विजन है कि बच्चों नू पढ़ा दो, पढ़ा के इस तरीके दे नाल, मान लो 77 दे विच जो लोग गरीब सीगे, 89 दे विच गरीब सीगे, उन्होंने अपनी जिंदगी औखे सौखे तरीके दे नाल कट ली। उन्हां दे बच्चों नू जेकर पढ़ा लिखा के असीं डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर जां चार्टर्ड अकाउंटेंट जां बिजनेसमैन बना देंदे हाँ, जां वधिया एग्रीकल्चर करते हैं, तो ये गरीबी तो अपने आप दूर हो जाएगी। तो मेरा अपना विजन है कि जो गरीबी रेखा है ना, जहां गरीब लोगों की संख्या हौली हौली कटनी चाहिए है, और जदों गरीबी रेखा 0 लेवल ते चली जाएगी फिर असी कहांगे कि हाँ जी
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਟਿਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਘਟਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, मैं यही कहूंगा कि मेरा ये विजन है कि गरीबों की संख्या कम होनी चाहिए, गरीबी हटनी चाहिए और आजकल के बच्चे पढ़ने लिखने चाहिए और उनको अच्छे तरीके से रोजगार में, मुझे आप अगर ये अपॉर्चुनिटी देंगे, अवसर देंगे, तो मैं क्या करूंगा, बच्चों को पढ़ाकर उनको अच्छे रोजगार में लगा दूंगा। ये सारी स्कीम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये मेरा अपना विजन है। एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसके सहारे हम ये गरीबी को या बहुत सारी जो और समस्याएं हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। तो मैंने अपना ईमेल आईडी और अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। आपको अगर कोई और जानकारी लेनी हो तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਰਿਟ ਡਿਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੈ ਹਿੰਦ।